Good morning, students. Today, let's begin chapter 9. Madam Rides the Bus, written by Valli Kannan. Madam rides the bus. Here, Madam is refers to a 8 years old girl, and this is the story of this small girl, and she is called here Madam. So before we begin the text, the story, let's briefly see the introduction given in the book. In this sensitive story, an 8 years old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी. बहुत ही संवेदनशील कहानी है, हृदय को छू देने वाली कहानी है. और इसमें एक 8 वर्ष ओल्ड लड़की के बारे में बताया गया है. जब ये 8 वर्ष की लड़की जब अपने घर से पहली बार बस यात्रा करके टाउन की ओर जाती है, तब उसे जिंदगी और डेथ के बारे में मालूम पड़ता है. इंडक्शन मीन्स नोन टू अननोन. ओके, क्योंकि जो चीज हम जानते हैं उससे अनजान चीज की ओर ले जाना, जिसको कहते हैं इंडक्शन. ओके, बिकॉज ये लड़की को जीवन और मृत्यु के बारे में पता नहीं था, पर वो जब घर से बाहर जाती है तब उसे जिंदगी और मृत्यु के बारे में समझ में आया. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. और वो मृत्यु के बारे में समझने लगी, और मृत्यु और जीवन के बीच में कितना गैप होता है और कितनी लंबी समय होता है, वो सारी चीज को वो समझने लगी. ओके, सो this was the small introduction, and before I begin the story, let me give some small story of this lesson only. So this 8 years old girl always remained inside the house, and near her house there was a bus route going towards the town, and after 1 hour any one bus was going through that route, and every time she just stood in front of her house near the main gate, and she used to stare the buses. She used to look at the buses and the passengers going by the bus, and each time she looked at the bus, she enjoyed looking the bus, and the passengers were sitting in the bus, and that gave her a strong desire in her mind to travel by bus and going to the town. For that, she started collecting the money, because she did not have money. So she started collecting money every day. 1 rupees she collected, and finally she
made some collection of money and she went to the town by the bus. And while going by bus and coming back to her house, she saw many things, many new things, and beautiful nature and creatures which made her very happy and attraction. So this is what the story goes on in the lesson. So now let's begin the story. I will read the story and I will explain you line by line. There was a girl named Waliamai, who was called Wali. Waliamai is her full name, and वली प्यार से उसे कह के पुकारते थे. She was 8 years old and very curious about things. वो 8 वर्ष की थी और उसे चीजों को जानने के प्रति बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा और इच्छुक थी. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. और उसका मनपसंदी पास टाइम समय बिताने का समय अपना दिन बिताने का समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पे खड़े होकर के सड़क की ओर देखना था. और सड़क में जितने भी लोग आते जाते थे, जो भी बस आते जाती थी, व्हीकल्स आते जाते थे, उसको देखती थी और वो उसी में वो खुश होती थी. There was no playmates of her own age on her street. और उसके उम्र के, उसके एज के, उसके स्ट्रीट, उसके गली में कोई भी दोस्त या सहेलियां नहीं थे और वो अकेले रहती थी. इसलिए वो हमेशा अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर के बाहर वो देखते रहती थी और वो आनंद लेती थी. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. और इस तरह वो करती थी. बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले. लेकिन घर के दरवाजे के पास खड़े होकर के गली की ओर देखना उसे उतना ही मजा आता था जितना कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा बच्चा किसी मैदान में जाकर के कोई गेम खेल रहा होता. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. और गली की ओर देखना उसे हमेशा नया नया अनुभव और नया नया एक्सपीरियंस उसे मिलता था. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन करने वाली चीज उसके लिए था कि बस यात्रा, जो बस जाती थी उसके घर के बाजू से, उसे देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता था. क्योंकि बस में लोग पैसेंजर रहते थे और पैसेंजर को देख करके, चढ़ते उतरते देख करके उसे बहुत ही अच्छा लगता था. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. और हर एक घंटे में उसके घर के बाजू वाली सड़क से हर एक घंटे में कोई ना कोई बस टाउन की ओर जाती थी और टाउन से गांव की ओर वापस आती थी. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers. और हर बार बस में नया नया पैसेंजर, नया नया सवारियां आते थे. Was a source of unending joy for Wali. और वही दृश्य उसके लिए अनएंडिंग, ना समाप्त होने वाली उसे खुशी देती थी. और day after day she watched the bus
and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. और दिन प्रतिदिन वो बसों को आते जाते देखती थी और धीरे से उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुआ, और वो इच्छा है कि बस में चढ़ करके टाउन की ओर जाना। She wanted to ride on that bus even if just once, और वह किसी भी हालत में, वह किसी भी तरीके से कम एक बार वो बस में चढ़ करके यात्रा करना चाहती थी। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire, और उसकी जो बस में चढ़ करके टाउन की ओर यात्रा करना, ये जो इच्छा थी वो उसके दिमाग में और बढ़ने लगा, स्ट्रोंग होने लगा। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज्यादा। ओके, Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner, और वली लोगों को उतरते चढ़ते बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखती थी। विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली, स्ट्रॉन्ग डिजायर। ओके, बहुत ध्यान से देखती थी हर एक स्टॉपेज में। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, और उनके चेहरों में चाहत या ड्रीम्स झलकता था। तो उन लोग हंसमुख लगते थे हर पैसेंजर। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English. और यदि कोई भी उसके साथी अगर बस यात्रा के बारे में उसे बता देता या डिस्क्राइब करने लगते, तो वो उन पे चिल्ला उठती। इन इंग्लिश, प्राउड। Neither she nor her friend really understood the meaning of word, but they used it often as slang expression of disapproval. और जब ये चिल्लाती थी इंग्लिश में, तो उसके सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता था। स्लैंग एक्सप्रेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज माउथ, मतलब वो मुंह बंद करके बोलती थी, ज्यादा मतलब स्पष्ट नहीं बोलती थी, बड़बड़ाहटना टाइप से बोलती थी। ओके, जब इस तरह से वो शाउट करती थी। Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. और महीनों भर तक वो अपने पड़ोसियों से बात करते हुए सुनती थी बस के बारे में, और जब वो सुनती थी तो ये कुछ क्वेश्चंस मतलब उनसे पूछ लेती थी। डिस्क्रीट का मतलब होता है अपने बातों को ध्यान से बोलना। ओके, दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और जब वो अपने पड़ोसी लोग जब आपस में बात करते थे बस जर्नी के बारे में, तो उनके बीच में जब ये रहती थी तो वो
उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करती थी और उससे उसको बस जर्नी के बारे में डिटेल्स वो कलेक्शन इकट्ठा करने लगी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और उसके घर से टाउन लगभग 6 माइल थी। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और बस का किराया एक साइड से 30 पैसे थे, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say by to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next. It seems fortunate. तो किसी सज्जन व्यक्ति से बोलते हुए सुनी कि ये 30 पैसे तो कुछ नहीं है, बहुत कम है, लेकिन वली के लिए वो 30 पैसे भी बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि उसके पास एक पैसे भी नहीं थे और उतना पैसा जमा करना उसके लिए बहुत ज्यादा लगता था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और उसके घर से टाउन जाने के लिए 45 मिनट्स लगते थे और 45 मिनट आने के लिए। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. और जाते वक्त वो 30 पैसे देती थी और वापस में वो 30 पैसे दे करके सेम बस से वो रिटर्न हो जाती। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। तो यहाँ पे वो अपना एजेंडा बना रही है। ओके, एजेंडा बना रही है। अगर 45 मिनट्स पहुंचने में लगता है और आने में 45 मिनट लगता है, तो वो कितना बजे बस में बैठेगी और वहां कितना बजे पहुंचेगी, और वहां से उसे 45 मिनट लगेगा आने में, तो कितना बजे अपना घर वापस आएगी, उसका ये यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन कर रही है। ओके, on and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। और ये थॉट अपने मन में लेकर के वो मतलब बार बार टाइमिंग को कैलकुलेट करने लगी और अपना प्लानिंग वो बार बार बनाने लगी। तो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे ओनली this much, and in the next video we will see the second part of this story. Till then, you study after listening to this video lecture. Thank you.